Hello everyone, welcome back to my channel Lovely Maths. Today I will give introduction of chapter 4 for class 10 and chapter 4 name is quadratic equations. Come in our mind, what is quadratic equation? Quadratic equation क्या है? A quadratic equation in X is an equation that can be written in the standard form ax square plus bx plus c equal to 0. What is our ABC? A, B and C. These are coefficient. A is coefficient of x square, B is coefficient of x and C is constant term. Where A, B and C are real number. A, B and C real number है. Rational भी हो सकते हैं. Okay. Negative, positive, square root. A quadratic equation in X also called a second degree polynomial equation in X. जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी मैक्सिमम पावर 2 ही होती है. अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equal to 0. A, B and C are real numbers and one condition is there. A should not be 0. If A is 0, then it will be not quadratic equation. I give you one example. If I take this A as 0, it will be 0x square plus bx plus c equal to 0. 0 multiply x square 0. It will be cancelled. 0 plus bx plus c. Bx plus c equal to 0. If a is a 0, it will change into linear equation. But we know that in quadratic equation, highest degree should be 2. So it is not a quadratic equation. इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक दो एग्जांपल और ले रही हूँ. 2x square plus x minus 6. If a is 0, that it is a not a quadratic equation. If I change 2x square minus 6, that is equal to 0. क्या ये quadratic equation होगी? Something is missing there. What is missing there? Here b is not there. But we can write in the form 2x square plus 0b minus 6 equal to 0. And then it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. I give one more example. If I write 2x square plus x equal to 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? अगेन ax square, see this, ax square plus bx plus c equal to 0. Here what is missing? Constant is missing, but we can write constant as 2x square plus x plus 0 into c equal to 0. Yes, it is a quadratic equation. If I give one more example, 3x cube plus 2x square plus x minus 6 equal to 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? अभी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 2. बट यू सी दिस, here is highest degree is 3. It is a cubic equation. It is not a quadratic equation. अब तो आप पहचान कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी. स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax square plus bx plus c equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए. अगर b मिसिंग है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
अगर c मीन्स कांस्टेंट भी मिसिंग है बट हाईएस्ट पावर 2 है, then it will be quadratic equation. Standard form of quadratic equation I have told you. Now second point is, that is the roots of an equation. What is the meaning of root of an equation? Its meaning is value of x. If term in x, then value of x. Value of x that satisfy the equation. ऐसी वैल्यू x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई मीन्स अगर आप x की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको क्या मिले? 0. तो वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन. क्या मीनिंग है इसका? अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखें, इस इक्वेशन में पुट करें, जो मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x² प्लस x माइनस 6, इसमें मैं रख दूं रूट की वैल्यू, तो ये हमें किसकी इक्वल आए? पूरी इक्वेशन क्या आए? इसकी वैल्यू 0 की इक्वल आए. ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, डोंट वरी. एंड आई हैव गिवन -2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन. इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट -2. 2 -2 स्क्वायर. जहां जहां आपका x है वहां आप -2 रखोगे. -6 इक्वल टू 0. -2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? प्लस का 4. +4 मल्टीप्लाई 2 8. आपकी ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, अंदर का साइन सेम रहेगा. -2 एंड -6 8 -8 इक्वल टू 0. मीन्स x की ऐसी वैल्यू जो आपकी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दे, वो होता है जीरो ऑफ इक्वेशन, और इसको हम अदर लैंग्वेज में कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन. होप यू अंडरस्टूड. रूट का मीनिंग आपको समझ में आ गया. अब आपको बताते हैं सोल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइंडिंग रूट ऑफ एन इक्वेशन. देयर आर 3 methods. 1/4 method is there by graph, but that is not your syllabus, in your syllabus, so I am explaining only 3. First, कैसे हम रूट निकाल सकते हैं. वन मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड. शायद आपको रिमेंबर होगा, आपने पीछे भी किया है, स्प्लिट द मिडल टर्म या मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. मिडल टर्म स्प्लिटिंग अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इस मेथड को. फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक formula. One by one I will explain all these 3 methods. Explaining first method, factorization method. Statement I have taken same, 2x² plus x minus 6. अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं. मीन स्प्लिट द मिडल टर्म. आपको क्या करना है, आपको इस 2 को इस -6 से मल्टीप्लाई करना है. 2x² minus 6 means if we multiply, आपको मिले -12. 2x² minus 6 means -12x². और अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास आना चाहिए x प्लस का x. आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं. अगर ये सिंपल नंबर है 12 है तो आप आराम से सोच सकते हैं. अगर बड़ा नंबर हो तो आपको क्या लेना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आई विल टेल यू, डोंट वरी. ऐसे 2 नंबर जब हम मल्टीप्लाई करें तो आए -12x², ऐड करें तो आए प्लस का x. यू नो दैट 4 3 12. x को स्प्लिट का मतलब होता है 2 पार्ट में तोड़ना. x को हम स्प्लिट कर रहे हैं +4x एंड -3x. जब हम इनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है +x. 4x - 3x प्लस x और 4x मल्टीप्लाई -3x, देन आएगा आपके पास 12 -12 एंड x -x². ओके, एंड राइट हियर -6. अब हमें लेना है कॉमन.
2x स्क्वायर एंड 4x में क्या कॉमन ले सकते हैं आप? 2x आपने ले लिया 2x, आपके पास अंदर रह गया x एंड प्लस 2, और यहाँ पे जो x प्लस 2 है इधर भी यही कॉमन आना चाहिए, तो आप -3 कॉमन लीजिए, आपके पास आएगा x प्लस 2। अभी मैं आपको बता रही थी कि अगर ये छोटा नंबर है तो आप आसानी से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर बार छोटा नंबर ही आएगा, बड़ा भी आ सकता है। एक बार मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड कैसे आया ये प्राइम फैक्टर से वो भी बता देती हूँ। जैसे आपने 12 को प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया, क्या आया? 6, फिर प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया, आया 3, मीन्स 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहीं से आपको फैक्टर चूज करने हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। 12 का तो आपने आसानी से समझ लिया, 4 एंड 3 है। बड़े नंबर के लिए आप फैक्टराइज करके बदल बदल के, जैसे 3 2 ज़ा 6 एंड 2 नहीं बन रहा तो कोई और ले लीजिए। इस तरह से आप प्राइम फैक्टर करके भी आप स्प्लिट द मिडल टर्म ले सकते हैं। नाउ कंटिन्यू आवर सम। अब ये हमारी एक टर्म है और ये भी हमारी एक अलग टर्म है। इसमें से हमने x प्लस 2 क्या ले लिया? कॉमन। x प्लस 2 कॉमन, इंटरनल वी विल गेट x प्लस 2 इज आउटसाइड, अंदर क्या बचा? 2x। ये x प्लस 2 बाहर आ गया, अंदर जो भी साइन है माइनस का है तो माइनस लगाइए, प्लस का है तो प्लस लगाइए, और -3 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस, आइदर x प्लस 2 इज 0, तो x की वैल्यू आएगी -2, और अगर आप लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x, ये -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड x इक्वल टू 3/2। तो ये दो जो x की वैल्यू है ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, मीन्स x -2 एंड x 3/2। इस तरह आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप रूट ऑफ द इक्वेशन निकाल सकते हैं या वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन सेकेंड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। In the same statement for second method also, completing the square method। आपने completing the square method में क्या करना है? आपको फर्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, चाहे 2 है, 3 है, 5 है, प्लस है, माइनस है, वो हमें हटाना है। उसी से ही डिवाइड कर देंगे तो जो ये नंबर है हट जाएगा। ओनली x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप आपको लेना है x स्क्वायर सिंगल ही लेना है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड। नाउ 2x स्क्वायर बाय 2, x बाय 2 माइनस 6/2 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर प्लस x बाय 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। जो आपके पास अब c है, मीन्स कांस्टेंट है, उसको आप इधर राइट हैंड साइड में ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 2 इक्वल टू 3। फर्स्ट स्टेप में आपने ऐसे करना है, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है? डिवाइड। x स्क्वायर और x को इधर लिखना है, और जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको अपने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। फर्स्ट स्टेप में भी क्लियर। अब आप आइए सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको इस x का कोफिशिएंट लेना है, x स्क्वायर का नहीं, सिर्फ x का। x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। ओके, इस 1/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। बाई चांस ये भी 1/2 है, आप मल्टीप्लाई भी 1/2 से कर रहे हो। कोई और नंबर होता, 1/3 होता, तब आपने किससे मल्टीप्लाई करना था? 1/2। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1/2, आपके पास आया 1/4। जो भी आपका कोफिशिएंट x का होगा उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया, आपके पास आया 1/4। अब 1/4 का करना है स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। नाउ दिस 1/4 स्क्वायर add to both the side, add
both the sides, means left hand side and both sides. I am adding here x square and plus x by 2 plus 1 by 4, and here is 3, 1 by 4 square we have to take, and 3 plus 1 by 4 square. ओके, ये अब आपको दिख रहा होगा एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 3 प्लस 1 बाय 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 16. अभी आपको अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ. अगर आप x प्लस 1 बाय 4 के स्क्वायर को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर एंड दिस 2 एक्स बाय 2. यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा जो ये आपका ये आएगा जो आपने ऐड किया है x लेना है. इधर से 1 बाय 4 है, 1 बाय 5 है, कुछ भी जो 1 बाय 5 का स्क्वायर है कुछ भी है वो आपने यहाँ लेना है. ये डायरेक्ट ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा. तो x प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाय 16. हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको. x प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर, एंड अब 3 को आप लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 16. 16 टेक एज एलसीएम. 16 को 1 से डिवाइड किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया. 16 3 जा 48 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 16. मीन्स x प्लस 1 बाय 4 अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या आएगा, प्लस माइनस इधर भी स्क्वायर रूट आएगा, मीन्स 49 अपॉन 16. x प्लस 1 बाय 4 is plus minus 49 square root is 7 and 16 square root is 4. Plus 1 by 4 is equal to plus minus 7 by 4. एक बार हम x plus 1 by 4 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव. आई एम सॉल्विंग हियर. x plus 1 by 4 एक बार आपको पॉजिटिव लेना है. x इक्वल टू 7 by 4. ये 1 बाय 4 लेफ्ट हैंड साइड है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, साइन चेंज हो जाएंगे. 6 बाय 4 मीन्स 3 बाय 2. एक बार आपको क्या लेना, नेगेटिव, बिकॉज ये प्लस माइनस बोथ है. x प्लस 1 बाय 4 इज माइनस 7 बाय 4. ओके, x इज माइनस 7 बाय 4 माइनस 1 बाय 4. x इज माइनस 8 बाई 4. क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो सेम नंबर न्यूमरेटर में आएगा. x वैल्यू इज माइनस 2. जो आपका सोल्यूशन आया, x की वैल्यू आई, वो आई आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3 बाई 2. जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था, स्टेटमेंट मैंने सेम ही ली थी, तब भी आपका यही आंसर आया था. x is equal to minus 2 and one value of x is 3 by 2. आपको लग रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड थोड़ा मुश्किल है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे इतना मुश्किल नहीं है. जब हम आप सम करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी. नाउ आई विल एक्सप्लेन थर्ड मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. नाउ आवर थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c equal to 0, and then formula we use minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या है फार्मूला abc, तो आपको मैंने बताया ही था. ये आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ये a है, कोफिशिएंट ऑफ x है वो b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है. और स्टेटमेंट मैंने सेम ही ली है ताकि जब आपका आंसर आए तो आप
तीनों मेथड से कंपैरिजन कर सकें। ओके, इसमें अब आपका इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए आपका क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए 2 है, बी आपका क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, अगर यहाँ पे माइनस एक्स होता तो -1 आता, और सी आपका है -6। आप इस फॉर्मूले में पुट करिए माइनस बी मीन्स -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर -4, ए आपका क्या है 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 4ac मीन्स 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, एंड सी है आपका -6। आपने इससे मल्टीप्लाई किया और अपॉन में 2 इंटू ए आपका क्या है 2, आपके पास आ जाएगा -1 प्लस -1, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, माइनस एंड माइनस प्लस 48 अपॉन 4। ओके, नाउ स्पेस नीचे कम है तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, -1 and here square root of 49, here plus minus and here 4। देन आप इसको आगे सॉल्व करोगे, -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 अपॉन 4। जो आपका एक रूट होगा x की वैल्यू होगी, एक बार आपको ये साइन लेना है प्लस और एक बार आपको साइन लेना है माइनस। जैसे मैंने पहला लिया प्लस का साइन, -1 प्लस 7 अपॉन 4, ये आ गया 6 अपॉन 4, 3/2। एक बार अब मुझे लेना है माइनस, x इक्वल टू -1 माइनस 7 अपॉन 4, दैट गिव्स यू -8/4 मीन्स -2। नाउ आप कंपैरिजन करो, मीन्स रूट वैल्यू या x वैल्यू एक आ रही है आपके पास 3/2 और एक आ रही है -2। हमने तीनों मेथड किए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड किया तब भी यही आया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया, इक्वेशन सेम ली, यही आंसर आया, और जब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तब भी आपका आंसर यही आया। कई बार क्या होता है कि जब आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना होता है, हो सकता है आपसे फैक्टर ना बने, ये तो इजी टू लर्न मेथड है, सीधा ABC की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पुट करो तो सीधा ही आपका सम सोल्व हो जाएगा। हो सकता है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मुश्किल लगे, बट अगर कहा जाए कि इसी मेथड से करना है, मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। बट मैंने आपको तीनों फार्मूले बता दिए हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सम करेंगे, जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तो बेसिक है, इनको इस वीडियो को आप एक बार 2 बार देखिए ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाएं। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट, इफ d इक्वल टू 0 देन वी गेट टू इक्वल एंड रियल रूट। अब आपके मन में ये आएगा ये d है क्या? अभी आपको मैंने एक फार्मूला बताया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। जो b² - 4ac है इसको d के इक्वल रख लिया मैंने, मीन्स ये d है, देन -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, मीन्स d की वैल्यू क्या है b² - 4ac। इस d को हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आपको सिर्फ b² - 4ac की वैल्यू निकाल के आप नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं कि क्या नेचर है जो आपके रूट्स आएंगे, वो रियल रूट है, रियल रूट नहीं है, इक्वल रूट है, कैसे हैं। अगर हमारा d यानी कि b² - 4ac 0 के इक्वल आ रहा है तो आपको क्या मिलेंगे 2 इक्वल एंड रियल रूट। रियल में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, अंडर रूट भी ले सकते हैं, रैशनल नंबर, कोई भी नंबर जो रियल नंबर हो। ओके, अब आपको मैंने एक इक्वेशन दी है 4x² + 12x + 9। आपको बताना है कि जो इनकी रूट्स आएंगे उनकी नेचर क्या है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे d की क्या वैल्यू आएगी, d किसके इक्वल है b² - 4ac, दिस वन b²
माइनस 4ac। यहाँ b क्या है, x का कोफिशिएंट, ओके, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है मेरा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड मल्टीप्लाई c क्या है, कांस्टेंट टर्म। 12 का जब स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 144, 4 4 जा 36, 36 9 जा 144, ओके, 4 4 जा 16, 69 जा 144, 144 माइनस 144 0 मीन्स इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल रूट होंगे, यानी कि दोनों x की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम आपको सेकंड एग्जांपल देते हैं, नेचर ऑफ रूट में। अब सेकंड पॉइंट, पहले हमने किया जब d इक्वल 0 था, अब हम आपको बता रहे हैं जब d ग्रेटर देन 0 है, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस वैल्यू इज b स्क्वायर माइनस 4ac। एक एग्जांपल मैंने इक्वेशन का लिया है, इसमें हम निकालेंगे d इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमारा b क्या है, -7, x का कोफिशिएंट आप लिखेंगे -7 का स्क्वायर, a है 2 एंड आपका c कांस्टेंट टर्म है 3। -7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, प्लस का 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आपके पास क्या आया 25। b स्क्वायर माइनस 4ac 25 है जो ग्रेटर देन क्या है 0। अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या मिलेंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मीन्स दोनों रूट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट वो रियल नंबर होंगे। अगर d 0 था तो दोनों रूट क्या थे, इक्वल। अब थर्ड में मैं आपको बताऊंगी इस थर्ड d की इक्वेशन के बारे में कि अगर d लेस देन 0 हो, अगर हमारा d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। एक एग्जांपल द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। वी विल फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स x कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर कोफिशिएंट इज 2, a की जगह 2 लिखें, एंड c है 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 2 जा 8, 4 जा 32 माइनस 31। जब आपका d नेगेटिव आए यानी लेस देन 0 आए तो आपके रियल रूट्स नहीं होंगे। और कई बार आपका जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना इजी लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, सीधा एबीसी की वैल्यू रखिए और निकाल सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आप ये चैप्टर कर रहे हैं, हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, बट आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी लगेगा। इसमें जो आप फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये आपने पहले ही किया हुआ है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करिए। अभी 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टूड, and don't forget to subscribe my channel. Please like the channel and share to others.